जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे टूणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। ગઈકાલે હું થોડી ભાવરાજ્યમાં ડૂબી ગઈ હતી, એટલે શેષ રહી ગયેલી વાતથી આજની શરૂઆત કરીએ. આનંદપુર અને ચિત્રકૂટની જેમ રાજકોટ અને વાંસદામાં પણ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી પ્રેરિત આઈ હોસ્પિટલો ચાલે છે. શ્રી રણછોડદાસજી બાપુ સ્મૃતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓએ અને સદગુરુ શિષ્ય મંડળે આ હોસ્પિટલમાં ઈસવીસન 2019-2020 આધુનિક પેકો મશીન તથા સોફ્ટ ફોલ્ડેબલ નેત્રમણી નિઃશુલ્ક મરીજોની આંખમાં બેસાડવા સાથે રેકોર્ડ બ્રેક 86,181 86,181 ઓપરેશન કર્યા. આ જ હોસ્પિટલ સમગ્ર ગુજરાતમાં જુદા જુદા ગામમાં રોજના 5 થી 7 કેમ્પ કરે છે. ત્યાં આવેલા દરેક દર્દીની ભગવાન માનીને રાજકોટની હોસ્પિટલમાં સેવા થાય છે. પેશન્ટોને નિશ્ચિત કરેલા સેન્ટર પરથી સંસ્થાની બસ દ્વારા રાજકોટ લાવવામાં આવે છે ને ત્યાં એ ભગવાનોના 2 દિવસના રોકાણ દરમિયાન ઓપરેશન, એમને જમવાનું, ચશ્મા, દવા, ટીપા, થાબડો વગેરે આપીને બસ દ્વારા ફરી પાછા નિશ્ચિત કરેલા કેમ્પના સ્થાન પર છોડી આવવામાં આવે છે. આવી નિઃશુલ્ક સેવા કરીને રાજકોટના ભક્તો, શિષ્યો શ્રી ગુરુદેવના આ ભાવપૂર્ણ શબ્દો રાજકોટ તો મેરા હૃદય હૈને સાર્થક કરી રહ્યા છે. ખૂબ અભિનંદન. વલસાડ નજીક આવેલા વાંસદામાં પણ સંત શ્રી રણછોડદાસજી બાપુ આઈ હોસ્પિટલ કાર્યરત છે ને ત્યાં પણ આ જ રીતે હૃદયપૂર્વક દર્દીઓની સેવા ને સાર સંભાળ કરવામાં આવે છે. આસપાસના એરિયામાં રહેતા બધા જ દર્દીઓને આ હોસ્પિટલથી ખૂબ ખૂબ પ્રસન્નતા ને નવી દ્રષ્ટિ મળે છે. બધા લાભાન્વિત થાય છે. એકવાર શ્રી સીતારામજી મહારાજ નામના એક મહાત્માએ શ્રી ગુરુદેવને આ પ્રશ્ન કરેલો: મહારાજ શ્રી, નેત્રયજ્ઞ અથવા એવી પારમાર્થિક સેવાઓ કરવા પાછળ આપનો હેતુ શું છે? જવાબમાં શ્રી ગુરુદેવ મધુર હસ્યા, કહ્યું, सेवा मेरे लिए सहज कर्म हो जाए यही मैं चाहता हूं. इतनी सहज कि नाम मात्र भी अहंकार न उठे. दिन भर में जाने कितनी बार हमारी आंखों पर पलकें गिरती उठती रहती है. श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी रात दिन चालू रहती है. क्या हम पलकों पर या श्वास पर कभी ध्यान देते हैं? कभी उसके लिए अहंकार करते हैं कि हमने इतनी बार पलकें झपकाई या इतनी बार सांस ली. श्वास ही जीवन है, प्राण है, फिर भी कोई उस पर गर्व नहीं करता. शरीर है तब तक किसी न किसी प्रकार का कर्म तो होता ही रहेगा. श्वास नहीं तो जिंदगी नहीं. उसी प्रकार सेवा नहीं तो जीवन नहीं. इसी ध्येय पर पहुंचने का यह प्रयत्न मात्र है. मेरी समझ में नेत्र यज्ञ की सेवा इसके लिए उत्तम है, क्योंकि जहाँ कैंप लगता है वहां पर हम सब लोगों को शायद ही दूसरी बार जाने का मौका मिलता है. जिनका ऑपरेशन हुआ हो उस व्यक्ति को जिंदगी में फिर कभी हम देख नहीं पाते. इससे उपकार की स्मृति और कर्म का अहंकार चित्त पर से हटता जाता है.
चित्त शुद्धि में यह बात बहुत महत्व रखती है। ऐसी मानव सेवा से मनुष्य में आत्मसमर्पण की भावना प्रकट होती है। श्री गुरुदेवनी नेत्रयज्ञ करवा पाछळनी આવી ઉત્તમ ભાવનાને શિષ્ય મંડળ સાકાર કરે, ઉપકાર કરવાની વૃત્તિથી અથવા આવું સત્કર્મ કરવાના અહંકારથી બધાય સાવધાન રહે તો ચિત્ત શુદ્ધિ થતા વાર ન લાગે. બધા જ આવી ખૂબ ખૂબ સેવા કરે ને શ્રી સદગુરુદેવનું નામ માનવ સેવાના જગતમાં આ રીતે જ અજવાળે ને ગુંજતું રાખે તેવી પ્રભુ શ્રીરામ ભગવાનને પ્રાર્થના. શ્રી ગુરુદેવનું આ સુવર્ણ વાક્ય છે, ભગવાન પર ભરોસા રખો, ભગવાન પૂર્ણ કરેંગે, तुम सब निमित्त हो. આ વાક્યને દરેકે હૃદયમાં કોતરી રાખવું જોઈએ. આવો આપણા નિત્ય નિયમ મુજબ હવે મનથી આપણે રંકાના લાલ બંગલામાં જલ્દીથી પહોંચી જઈએ, જ્યાં શ્રી ગુરુદેવના બોધ વચનો આપણને સતત સત્કર્મ, ધર્માચરણ, સત્સંગ અને ચિત્ત શુદ્ધિ કરવા માટે જાગૃત કરી રહ્યા છે. ગઈકાલે અધૂરા છોડેલા પ્રવચનથી શરૂ કરું. તારીખ 4/8/1967. શ્રી સદગુરુદેવે પોતાના પ્રવચનમાં કહ્યું, प्रकाशानंद जी महाराज से एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जिज्ञासु को क्या करना चाहिए? तब उन्होंने साफ कह दिया कि जिज्ञासु को जिज्ञासु बनना चाहिए. प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया, तो फिर महाराज जी आत्म विषय में कुछ कहिए. श्री प्रकाशानंद जी महाराजे एमने सामो सवाल पूछ्यो, आप आत्मा को जानते हैं? प्रश्नकर्ता ने कहा, जी नहीं. त्यारे प्रकाशानंद जी महाराजे कह्યું, तो फिर तुमसे आत्मा के बारे में क्या बात करें, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा. और फिर प्रश्नकर्ता कहे कि जानते हैं. तो फिर महाराज जी कहे कि तो फिर पूछते क्यों हो, कार्य में लग जाओ. वे ऐसे ही सबको टरका देते थे. जामनगर कास्टमोन से मेरी निकलने की इच्छा ही नहीं थी, परंतु फिर भी निकलना पड़ा. कास्टमोन में मुझे उंदर ने काटा था और मुझे पता भी नहीं पड़ा था. अब भी उसका निशान है. सारे कपड़े खून से भीज गए थे. जामनगर कास्टमोन सन 1954 થી 1956 2 વર્ષનું કાસ્ટમોન જામનગર વાડીમાં લીધેલું. જય શ્રીરામ. તારીખ 5/8/1967. સમય સવારના 9. સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ હોવાથી આજે શ્રી ગુરુદેવ રૂમમાં જ બિરાજે છે, ઓરડામાં પાટ પર બિરાજ્યા છે. 9 વાગે એમણે સત્સંગની શરૂઆત કરતા કહ્યું, एक साजिद नाम के मुसलमान कवि हो गए. उन्होंने वैताल विक्रम की बातचीत की कविता लिखी है. वैताल विक्रम का मंत्री था. उन्होंने लिखा है, मरे कर्कशा नार, मरे वो बलम निकट्टू, कुंवर बैल मर जाए, मरे वो अड़ियल टट्टू. पुत्र वही मर जाए जो कुल को दाग लगावे, मित्र वही मर जाए जो वक्त पे काम न आवे. वैताल कहे, सुन विक्रम, इनके मरे न रोइए और पैर पसार के सोइए. कर्कशा नारी, नक्कामो आळसू पति, कुंवड़ बળદ, अड़ियल गधेड़ू, डफणा मारवाथी पण जे न चाले, एवो पुत्र जे कूड़ने दाग लगावे, लांछित करे, ने एवो मित्र पण शो कामनो जे समय पर काम न आवे. वैताल कहे छे के विक्रम सांभळ, आवा लोकोना मृत्युनो शोक शुं करवो, पैर पसार के सो. मतलब आवा लोको शोक करवा लायक નથી. ત્યાર પછી એમણે એક ઉખાણું કહ્યું. ઉખાણા સંભળાવવાના મિજાજમાં હતા, લાઇટ મૂડમાં હતા. એ ઉખાણામાં એમણે કહ્યું, મહિફલ તુરત મંગાવ, દે કૃષાનું મોહી ગોદ લે, પત્રી દે ઘર આવ,
कहो कृष्ण बारी नहीं। गुरुदेव ने कहा मैं ऐसे सवाल बताऊंगा जिनका एक ही शब्द में जवाब हो। आ उखाणाમાં बारी नहीं, દરેક જે પ્રશ્ન છે એને એક જ શબ્દ લાગુ પડે છે, બારી નહીં. તો કૃષ્ણ કહે છે કે મહીફળ માટે બારી નહીં, એટલે કે ફળની અહીં વાડી નથી. બે કૃષાનું, કૃષાનું એટલે અગ્નિ, અહીં આટલામાં ક્યાંય ચૂલો સળગતો નથી, તો અંગાર ક્યાંથી મળે? ત્રીજો મોહી ગોદ લે, તો તું એટલો નાનો બાળક નથી, બારી એટલે બાળક, કે તને ગોદમાં ઉચકી લેવાય. ચોથો શબ્દ પત્રી આપવા માટે પણ બારી, એટલે કે તું પત્રવાહક નથી, સંદેશવાહક નથી. ત્યાર પછી એમણે બીજું ઉખાણું કહ્યું, ब्राह्मण प्यासा क्यों और गधा उदासा क्यों? जवाब लोटा नहीं था। मतलब ब्राह्मण के पास लोटा न होने के कारण वह पानी नहीं पी सका, तो प्यासा रह गया। और गधा आड़ोटे, तो गधा न लौटने के कारण उदास था। त्रीजो उखाणो एमणे पूछ्यो, पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाए, अंगारे बाटी जले, कहो चेला क्या उपाय? जवाब फेरा नहीं होगा। मतलब कि पान को हम फेरे नहीं तो वह सड़ जाता है। घोड़े को एक ही जगह बांध कर रखे, घूमने फिरने न दे तो वह अड़ जाता है। विद्या को फिर याद न करते रहे तो भूल जाते हैं, और चूल्हे में रोटी को पलटे नहीं तो वह जल जाती है। चौथो उखाणो मैंने संस्कृत एक श्लोक कहो, रथ चक्रम समाहितम स्त्री नाम त्रि अक्षरम, आदि चर्चा अंत बब्बा मध्य जाने ते पंडिता। जवाब जलेबी। एमणे कह्युं श्लोकनो अर्थ थाय रथना चक्र जेवो जेनो आकार छे, रथनो चक्र जेना आकारमा समायेलुं छे, नाम स्त्रीનું છે, એમાં 3 અક્ષર છે, પહેલો જ અને છેલ્લો બ, તો વચ્ચેનો અક્ષર જે કહી શકે તે પંડિત. ઉત્તરમાં શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું જલેબી. જલેબી પૈડાના આકાર જેવી છે, સ્ત્રીલિંગમાં છે, ના 3 અક્ષર જ, લે અને બી છે. પહેલો જ, છેલ્લો બી, વચ્ચે આવે છે લે. ઉત્તરમાં એમણે કહ્યું જલેબી. ચોથું ઉખાણું એમણે કહ્યું, अर्धनिशा व आयो भवन, सुंदरता बरनई असकोन, ताही देख कर भयो आनंद, क्यों सखी सज्जन ना सखी चंद. एक स्त्री પોતાની સ્ત્રી મિત્રને આ ઉખાણું કહેતા કહે છે કે એ અડધી રાત્રે મારા ઘરમાં આવ્યો, એની સુંદરતા તો અવર્ણનીય છે, એને જોઈને જ આનંદ આનંદ થઈ ગયો. ત્યારે પૂછે છે કે સખી કહે એ આવનાર કોણ હશે? એની મિત્ર સ્ત્રી જવાબ આપે છે કે તારો સાજન. ત્યારે સ્ત્રી જવાબમાં કહે છે ના સખી સજ્જન ના સખી ચંદ. એટલે ચંદ્રમા અડધી રાતે બારીમાંથી એના ઘરમાં આવ્યો, ચંદ્રમાને ઉદ્દેશીને આ ઉખાણું લખાય. આજે સૌને ખૂબ આનંદ આવ્યો. કોઈ શ્રી ગુરુદેવના એક પણ ઉખાણાનો જવાબ આપી શક્યું નહીં. દરેકની સ્પષ્ટતા શ્રી ગુરુદેવે જ કરી. ખૂબ લાઇટ મૂડમાં હતા તે દિવસે, એટલે બધાનો થાક ઉતરી જાય, બધાને થોડો આનંદ આવે, થોડી ગમ્મત મળે, એટલા માટે તે દિવસે આમ તબિયત નરમ હતી પણ મૂડ ખૂબ સારો હતો, એટલે તે દિવસે આ રીતનો સત્સંગ એમણે કર્યો. સવારના લગભગ 11 વાગ્યે શ્રી અરવિંદભાઈ, સુશીલાબેન, ઉષાબેન, અરુંધતીબેન વગેરે પૂજ્યશ્રી પાસે આવ્યા. સૌએ પ્રણામ કર્યા. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, दिन के बाद में रात्रि होना ही चाहिए, नहीं तो दिन को दिन कहे कौन. एक अध्यात्म विषय ही ऐसा है जिसमें दुखानुभूति नहीं होती, वह सदा एक रस रहता है. व्यावहारिक जीवन में कष्ट के बाद सुख होता है, सुख दुख
दोनों द्वंद्व है। भगवान जिसने यह दुनिया बनाई है वो इतना क्रूर नहीं है। माँ खुद बच्चे को मारती है पर दूसरे किसी को मारने नहीं देती। कोई मार ले तब लड़का दोषी हो तो भी वह लड़के का ही पक्ष लेती है। इसी आशय से मैंने कहा था कि अब की बार बिहार में बहुत अच्छी फसल होगी। 2 साल से यहाँ पर फसल नहीं हुई है। भगवान बहुत दयालु है, वे बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं और हमारे दुष्कर्मों को भूल जाते हैं। आपने अन्न का नहीं पर प्राण का दान दिया है। आप लोगों ने बिहार को जितने भी अंश में बचाया अच्छी तरह से बचाया है। इसके सिवा और फायदा यह हुआ कि लोग ईसाई होने से बच गए। शासन का कोई अलग धर्म नहीं होता है, सिद्धांत होता है। शासन न्यायी दृष्टि से सर्वधर्म पोषक होता है। राजा धर्मनिष्ठ हो सकता है पर शासन में धर्म को कोई स्थान नहीं है। जिस समय धर्म की क्रांति होती है उस समय नेता को बिना मौत मरना पड़ता है। इसके लिए शंकराचार्य, दयानंद महाराज आदि को विष दिया गया। श्रद्धानंद को इसके लिए गोली मार दी गई। इस काम का करने वाला तो उसी रोज मर जाता है जिस रोज वह संकल्प करता है, जी को न डर और जी में आए सो कर। पत्था हाथ में हो और धड़ करे काम, वही कुछ कर सकता है। प्राण के डर से ही इस कार्य में शिथिलता आती है। संस्कृति की रक्षा को प्राण दान देना ही पड़ता है। मनुष्य में कुछ नहीं है, केवल पानी का बुदबुदा है। अहंकार को लेकर ही वह सारी क्रिया कर रहा है। मैं जब अफ्रीका जाने वाला था तब मेरे से पूछा गया था कि किसी धर्म के प्रचार के हेतु या किसी धर्म पर उपदेश देने को तो आप अफ्रीका नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ भी बाहर से आने वाले के लिए ऐसा नियम होना चाहिए। સાંજે 4 વાગ્યે શ્રી ગુરુદેવ હોલમાં પધાર્યા. ભક્તો એમની રાહ જોઈને હોલમાં બેઠા હતા. શ્રી અરવિંદભાઈ અને પાર્ટી પણ ત્યાં હાજર હતી. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, कल सब लोग सारे संकल्प विकल्प छोड़कर खूब मन लगा के मानस जी का पाठ करना। श्रावण के प्रारंभ में ही सोमवार है, कितना शुभ दिन है। आप जिस तरह स्वाध्याय करते हैं उसी प्रकार सुबह शाम बराबर करते रहना। स्वाध्याय से ईश्वर संप्रयोग होता है। प्रार्थना में ईश्वर का ऐश्वर्य है। इसके करने से नम्रता आती है, क्षमा यापन होता है और ईश्वर में निष्ठा बढ़ती है। ईशावास्य उपनिषद और गीता जी के अध्याय का पाठ बराबर करते रहना। दिए हुए नियमों का पालन करना। मंत्र जाप योग का एक आवश्यक सोपान है। किसी भी योग में सूक्ष्म प्रणव किसी भी रूप में मंत्र जाप अवश्य होगा, क्योंकि इसके बगैर मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। मौन का नियम तो है ही, इससे भी बड़ा मौन मैं बताऊं, दोष न हो उसका अध्यारोप करके दूसरों को कहना, दोष को दोष के ही रूप में कहना और दोष को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये तीनों ही निंदा के स्वरूप है। 1 महीना तक हम किसी की भी निंदा न करें। एक जगह पर ईरानी, यूरोपियन और भारतीय बैठे हुए थे। ईरानी बोला कि हमारे यहाँ इतनी ऊंची मस्जिद है कि ऊपर से यदि अंडा फेंका जाए तो नीचे आते आते वो मुर्गा बन जाता है। यूरोपियन ने कहा कि हमारे यहाँ इतना ऊंचा होटल है कि अभी तक उसका अंत ही नहीं मिल पाया। भारतीय से गप्पे नहीं सुनी गई। उसने कहा कि हमारे यहाँ इतना ऊंचा बांस है कि उसको हम आकाश तक पहुंचाकर पानी बरसाते हैं। दोनों ने पूछा कि इतने बड़े बांस को तुम रखते कहाँ हो? चट ही भारतीय बोला,
तुम्हारे होटल और मस्जिद में। ऐसी झूठी बातों को हम 1 महीना तक न कहें। यद्यपि हास्य में मिथ्या का दोष नहीं होता है, पर 1 महीना हम उसे भी छोड़ दें। ईर्ष्या का तो सदैव त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या में व्यवहार कलुषित हो जाता है। ईर्ष्या सत्य स्वरूप को जानने नहीं देती। હોલમાં સુંદરજી બાપા બેઠેલા, એમના પર દ્રષ્ટિપાત કરીને બોલ્યા, सुंदरजी बापा तो यहाँ होंगे ही। 1 महीना सब क्रोध न करे, सब अपने कमरे में लिख कर रखे कि श्रावण मास है और गुस्सा करना पाप है। क्रोध पाप का मूल है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। વિષયોનું ચિંતન કરતા પુરુષને જે તે વિષયોમાં આસક્તિ થાય છે, આસક્તિથી કામના થાય છે અને કામનાથી ક્રોધ જન્મે છે। ત્યાર પછીનો શ્લોક છે, ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ગીતાજી 62 અને 63મો શ્લોક। ક્રોધથી મનુષ્યમાં મૂઢતા આવે છે। મૂઢતાથી યાદ શક્તિનો નાશ થાય છે। યાદ શક્તિના નાશથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને બુદ્ધિના નાશથી મનુષ્યનો संपूर्ण नाश થાય છે। क्रोध के बस होकर मानव अनुचित और मानवता को शोभा न दे वैसी क्रिया कर बैठता है। विचारवान को क्रोध शांत होने पर फिर बहुत पश्चाताप होता है। क्षमा किसको किया जाता है? अपराधी को। जिसमें अपराध ही न हो उसे क्या क्षमा करना। मन में जलते रहकर ऊपर से शांत नहीं बनना। शांत चित्त होकर विचार करने से क्रोधी विचार नरम पड़ जाएंगे। नाभि की गति पहले आंख से संबंध रखती है, इसलिए पहले क्रोध आंख पर आता है। आप लोग देखेंगे कि क्रोधी मनुष्य की आंखों का भाव बदल जाता है, बाद में वह सारे शरीर में फैलता है। इसलिए आंखों पर क्रोध आवे उसके पहले ही हमें विचार करना चाहिए, वरना क्रोध हम पर हावी होकर हमारी बुद्धि का नाश कर देगा। प्रतिकूलता क्रोध की उत्पत्ति का कारण है। प्रतिकूल सुनना और प्रतिकूल देखना, दो ही कारण ऐसे हैं जो क्रोध को उत्पन्न करते हैं। कोई हम पर चोरी का दोषारोपण करता है, तब हमें गुस्सा आता है। उस समय हमें विचार करना चाहिए कि हम चोर नहीं है और दोषारोपण करने वाला मार्ग भूलता है। भूले हुए पर क्या क्रोध करना। यदि हम सचमुच में चोर है तो ऐसा कहने वाला हमको अपना दोष बताता है और सच्चा ही तो कहता है। अपना दोष जो बतावे वह हमारा गुरु है। गुरु पर क्रोध करना चाहिए। काठियावाड़ में कुएं पर छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। पानी खींचने से रस्सी में धीरे धीरे पत्थर घिस जाते हैं। जब इतना कड़ा पत्थर नरम पड़ जाता है तो विचार करने से क्या हमारा क्रोध नहीं जाएगा? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात कै पत्थर पड़त निशान। सावन में एकटा ना करना, साग नहीं खाना आदि स्थूल नियम है और क्रोध नहीं करना आदि सूक्ष्म नियम है। हम यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि सावन शिव जी का महीना है ना। शिव यानी कल्याण। कितना कष्ट उठा करके सहन करके आप लोग यहाँ सेवा करने आए हैं। यह तो भगवत कृपा है कि बारिश खूब जोर से यहाँ नहीं आई, वरना आप लोग झोपड़े में रह भी नहीं सकते थे। इतना कष्ट सहन किया है तो सावन में उसका फल भी तो लेना चाहिए ना। महिमना स्तोत्र का पाठ रोज करना। 15 रोज में एक उपवास करने के लिए एकादशी की जाती है। यह पुण्य तिथि है। एकादशी में आलू का भजिया,
सिंघाड़े के आटे का हलवा और मूंगफली हम लोग खाते हैं और हमें अजीर्ण हो जाता है। इससे तो दाल भात ही खाना अच्छा। एकादशी को हल्के से हल्का पदार्थ लेना चाहिए। आग में पकाया हुआ कुछ भी नहीं लेना, ऐसा फलाहार का अर्थ होता है। इसके सिवा जो भी चीज हम खाते हैं वह आहार में है। उपवास के प्रकार होते हैं। जिसमें जल तक न लिया जाए वो निरांबु या निर्जला उपवास कहलाता है। जिसमें सूक्ष्म 2 भाग फल, 2 भाग पानी, फल या फल जैसी तरल वस्तु ली जाए उसे फलाहार कहते हैं। जिसमें फलादि न लेकर केवल दूध या शक्कर का पानी लिया जाए वो कहलाता है निराहार। जिसमें 12 बजे पश्चात एक बार हल्का भोजन लेकर फिर कुछ भी न लिया जाए वह है एकटाना। हमेशा भगवत स्मरण करके सोना और उठना भी हरि स्मरण करते करते। खूब आनंद आएगा। हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी हमसे उद्वेग, विक्षेप या दुख न हो और हमें अपने साधन में उत्साह रहे। इतना ही कहूंगा कि भजन और प्रत्यक्ष नारायण की सेवा में ही हमारा इस मास का क्षण क्षण बीते। जय श्री राम। तारीख 6/8/1967। આજે અમાવાસ્યા છે। સવારની પ્રાર્થના બાદ શ્રી માનસજીના અખંડ પાઠનો હોલમાં શ્રી ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં પ્રારંભ થયો। ખૂબ ભાવ અને પ્રેમ સાથે મંગલાચરણ થયું। શ્રી ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય સાધારણ। સ્વર્ગસ્થ શ્રી મફતલાલજીની આજે નિધન તિથિ હોવાથી શ્રી અરવિંદભાઈ તરફથી આજે દરિદ્ર નારાયણોને ભોજનમાં દાળ, ભાત, પૂરી અને શાક આપવામાં આવ્યા। આજે સોમવાર, શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો દિવસ। શ્રી ગુરુદેવ વહેલી સવારે લગભગ 3 વાગ્યે જાગૃત થઈ ગયા। આજે મુંબઈ જવા માટે નીકળવાનું હોવાથી સ્વયંસેવક ભાઈ બહેનોને શ્રી ગુરુદેવે જરૂરી માર્ગદર્શન અને સલાહ સૂચન આપ્યા। સૌ ભક્તોએ ભાવપૂર્વક પૂજન કરીને ચરણામૃત લીધું। સવારે 4 વાગ્યે શ્રી માનસજીના અખંડ પાઠની પૂર્ણાહુતિ થઈ। શ્રી ગુરુદેવ પૂર્ણાહુતિમાં પધાર્યા। 6 વાગ્યે રંકા છોડી દીધો। જય શ્રી રામ। મુંબઈ, તારીખ 11/8/1967। આજે આખો દિવસ પ્રહલાદભાઈને ત્યાં દર્શનાર્થીઓની ભીડ રહી। શ્રી ગુરુદેવ ખૂબ થાકી ગયા હતા અને આખી રાતનો ઉજાગરો પણ હતો, તેથી બપોરના થોડો આરામ કર્યો। સાંજે શ્રી અરવિંદભાઈ વગેરે આવ્યા। સૌએ પ્રણામ કર્યા। સમય આશરે સાંજે 7 વાગ્યાનો। श्री गुरुदेवे કહ્યું, लोग मेरे पास आते हैं, सब संतप्त है। संसार में पूर्ण भोग किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। पुत्र, दारा, लक्ष्मी, सेवक का सुख सबको एक सा नहीं मिलता। इसके अभाव का वचन जो कि मन में भरा रहता है उसे उंडेले कहा। तो मेरे पास आकर लोग सब कुछ कह जाते हैं। मैं उनको सांत्वना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देता हूँ। साधु का स्थान वे इसीलिए ढूंढते हैं। समाज में वही बातें यदि वे लोग कहे तो टीका के पात्र होते हैं। कोयल और कौवा एक से ही आकार के होते हैं, परंतु वाणी में अंतर होता है। कौवा काको लेत है, कोयल काको देत, मधुरी बानी बोलकर जग अपनो करी लेत। कौवा का किसी को भी नहीं सुहाता। साधु में और कुछ भी नहीं होता है। सांत्वन और धीरज कभी कभी काम कर जाते हैं। उनको मार्गदर्शन मिल जाता है और वे सफल हो जाते हैं। मेरे में कुछ भी नहीं है। जो मानव दूसरे के काम में आवे वह मनुष्य की आकृति में देव है। भले वह कुछ भी न कर सके, परंतु यदि हित चाहता है तो वह महान है। और क्या रखा है, जन्म के पूर्व में कुछ था नहीं
और जन्मांत में भी कुछ रहेगा नहीं। चित्त में केवल स्मृति भर रहती है और वो भी धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। इतिहास निकले तब याद आता है। भोज के पिता ने एक रोज मुंज को बुलाकर कहा कि कल मैं तुझे राज्य सौंप दूंगा। भोज के पिता और मुंज दोनों भाई थे। मुंज के कोई संतान नहीं थी। उसने भोज को गोद ले लिया, उसको पढ़ाया और सब प्रकार की विद्या सिखाई। एक रोज मुंज ने भोज के साथ बातचीत की। मुंज को बहुत बड़ा ही विद्वान लगा। उसको डर लगा कि बड़ा होकर यह मेरा राज्य ले लेगा। उसने भोज को मार डालने का सोचा। जिस भोज को पढ़ाया, विद्वान बनाया, उसी को क्षुद्र राज्य के लिए मार डालने को उसने नक्की किया। मुंज का वत्सराज मंत्री और मित्र था। होटलिया मित्र तो बहुत होते हैं, ऊपर से भाई की तरह साथ रहते हैं, परंतु जरूरत होने पर काम नहीं आते। अत्यंत कष्ट पड़ने पर अपना बलिदान दे दे, वही सच्चा मित्र। मित्रता बहुत स्वच्छ होनी चाहिए। मुंज ने वत्सराज को बुलाया और भोज को मार डालने को कहा। स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि कुंठित कर देता है। वत्सराज ने सोचा कि यदि मैं मना करूंगा तो मुंज दूसरे से यह काम करवाएगा और बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। उसने सोच विचार कर हामी भर दी। वत्सराज ने घर जाकर के कहा कि मैं पुत्र की बहू को लेने चाहता हूं। सुबह भोज के पास गए। भोज ने वत्सराज का आदर किया। वत्सराज ने कहा कि चलो आज शिकार को जाएंगे। दोनों ही चल दिए। खूब दूर जाने पर वत्सराज ने कहा कि अब मैं तुमको मार डालूंगा, क्योंकि राज आज्ञा ऐसी है। भोज मान नहीं सका। वत्सराज ने राज आज्ञा की मुहर वाला पत्र निकालकर बताया। देखकर भोज ने कहा कि भले मार डालो, मुंज मेरे काका है और पिता के समान भी है। वत्सराज बोला, मुंज को कोई संदेशा तुम भेजना चाहते हो? भोज ने एक पत्ता लेकर उसमें अपने खून से लिखा कि संस्कृत एक श्लोक लिखा, मांधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूतो गतः सेतुर्येन विनिर्मितो जलनिधौ वासौ दशास्त्यांतक अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतय याता दिवं भूपते नैके नापि समम गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। मतलब इस मैं भी ठीक से नहीं पढ़ पाती हूँ। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है, इस पृथ्वी के ऊपर सतयुग में मांधाता जैसे राजा हुए, जिन्होंने एक ही दिन में दिग्विजय किया था। वे यहीं पर जला दिए गए। पृथ्वी उनके साथ नहीं गई। त्रेता युग में रावण एक ऐसा राजा हुआ कि उसके पास तंत्र विद्या सीखने खुद राम जी को भेजा था। बौद्ध धर्म में दशरथ जातक में यह कथा लिखी। रावण ने वेदों पर भाष्य लिखा था, उसे भी इसी पृथ्वी पर जला दिया गया। द्वापर में महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ श्री कृष्ण भगवान खुद सेवा करते थे। उनके साथ भी यह पृथ्वी नहीं गई। अब कलयुग में हे काका, यह पृथ्वी तुम्हारे साथ में जरूर जाएगी। मेरा आखिरी प्रणाम। फिर पत्र वत्सराज को देकर भोज मरने को तैयार हो गया, परंतु वत्सराज ने उससे कहा कि मैं जो ये बहू के कपड़े लाया हूं, उन्हें पहन लो और डोली में बैठ जाओ। वत्सराज ने भोज की एक उंगली काट ली और दूसरे पशु को मारकर भोज के वस्त्र उसके खून में भिजाकर मुंज को दिए। मुंज ने वत्सराज को 32 गांव जागीर में लिख दिए। एक रोज मुंज ने वत्सराज से पूछा, मरते वक्त भोज ने कुछ कहा है? वत्सराज बोले कि कहने लायक नहीं है। मुंज ने पूछा, ऐसा क्यों?
मेरे विरुद्ध बोले ऐसे भोज के संस्कार नहीं है। वत्सराज ने तब पत्र निकाल के दे दिया। पढ़कर मुंज रोने लगा और कटार लेकर खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। वत्सराज ने उसे समझाया कि राज्याधिकारी अब कोई है नहीं और तुम्हारे ऐसा करने से प्रजा में फाटफूट हो जाएगी। मुंज ने खूब विलाप किया। तब वत्सराज ने पूछा कि भोज यदि मिल जाए तो जिंदा रहोगे? भोज जिंदा है, मैंने राजाज्ञा नहीं मानी है। तुम्हारी प्रकृति में जानता हूँ। मुंज ने दूसरे ही रोज भोज को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। थोड़े से स्वार्थ के लिए मनुष्य इतना अघटित कार्य कर डालता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन नहीं चाहता कि हम सुखी हो, लक्ष्मीवान हो। सब परिश्रम करते हैं, परंतु पूर्व संस्कार हो तो विपुल धन थोड़े से परिश्रम से मिल जाता है, और पूर्व संस्कार कमजोर हो तो खूब पुरुषार्थ करने पर भी कुछ नहीं मिलता है। व्यवहार में प्रारब्ध मुख्य है। प्रयत्न में, पुरुषार्थ में जब प्रारब्ध काम नहीं देता तब मनुष्य मानसिक रूप से रोगी हो जाता है और डॉक्टर की गोलियां खा खाकर और भी कमजोर हो जाता है। शास्त्री के पास जाओगे तो वह कहेगा ग्रह दशा लग गई है। बुआ के पास जाओगे तो वह कहेगा कि तुमको डाकिनी लग गई है। वैद्य के पास जाओगे तो वह तुम्हारे शरीर में से रोग को ढूंढ निकालेगा, और मेरे पास आओगे तो मैं यही कहूंगा कि तुम वजन नहीं करते हो, इसलिए ऐसा होता है। टीबी वाला मेरे पास आता है, घर का सारा बोझ, कुटुंब भर की जवाबदारी उसके माथे पर होती है। कमाने वाला एक और खाने वाले 10। यहाँ पर श्री गुरुदेव ने व्यवहार और पुरुषार्थ के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है। व्यवहार में प्रारब्ध मुख्य होता है। तकदीर में हो सो और उतना ही व्यक्ति को मिलता है, परंतु भजन में, साधना में केवल पुरुषार्थ मुख्य होता है। जितना अधिक समय तुम भजन साधना को दोगे उतनी ही तुम्हारी उन्नति होगी। पुरुषार्थ में साधना मुख्य होती है और व्यवहार में प्रारब्ध मुख्य होता है। चिंता ज्वाल शरीर में दावा न लग जाए, प्रगट धुआं होवे नहीं अंदर ही धधकाए। चिंता का नाश करने के लिए धैर्य पूर्वक पुरुषार्थ करो। जो होने वाला है सो होकर ही रहेगा, ऐसा दृढ़ संकल्प रखो। चिंता को मिटाने का सच्चा प्रयत्न करो और नीति साफ रखो। पहले जो रिश्वत लेते थे वे रात दिन संतप्त रहते थे कि जाने कब पकड़े जाएंगे। अब नहीं हो, अब तो आनंद है। मानवता रह नहीं गई, सभी दानवता की ओर चले जा रहे हैं। शासन की निर्बलता मिटाना आप लोगों के हाथ में है। जरा सा हमें स्वार्थ रहित होना चाहिए। साम्राज्य और साम्यवाद के हाथ में नहीं, पर व्यक्तियों के हाथ में, सुयोग्य व्यक्तियों के हाथ में शासन दे दो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जब राज सत्ता की कुर्सी आती है तब 6 किले भी वह कुर्सी साथ में लाती है। 2 आंख में आती है जिससे हमें सच्चा कुछ भी नहीं दिखता। 2 कान में आती है जिससे हम कुछ सुन नहीं सकते, और 2 मुंह में आती है जिससे हम सच्चा कुछ बोल नहीं सके। हमारे में त्याग नहीं है, हमारी ये निर्बलता है। आमदनी से ज्यादा हमने जरूरियातें बढ़ा रखी है। जरूरियातें कम करो, आत्मगौरव मत बेचो। अभाव है तो साबुन की जगह मिट्टी वापरो। वस्तु का आकर्षण बढ़ाकर लोग तरह तरह की युक्तियां माल बेचने को करते हैं। हम जरूरियातें कम नहीं करते और कहते हैं कि हम दुखी हैं। 500 का पगारदार एक साड़ी लाता है, उसे देखकर 150 के पगारदार की पत्नी भी ऐसी ही साड़ी मांगती है। विचारो, समझो। जरूरियातें कम करने से दुख अपने आप हल्का हो जाएगा। हमने यहाँ तक देखा है कि जिनको एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता है
वे लाखों के मालिक बने बैठे हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ साथ में मिलने से क्या नहीं होता है। ददुआ महाराज देखने में सुंदर नहीं थे, पर बहुत ही भाग्यवान थे। उनसे किसी ने व्यंग में पूछा, महाराज, सौंदर्य का जिस समय हाट लगा हुआ था, उस समय आप कहाँ थे? चट ही उन्होंने जवाब में कहा, उस वक्त मैं प्रारब्ध की गली में घूमता था साहब। प्रारब्ध निमित्त चाहता है, निमित्त पुरुषार्थ चाहता है, और पुरुषार्थ स्वार्थ रहित करना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति जैन धर्म में है। प्रारब्ध को उसने जटिल माना है। कुंद कुंदाचार्य की समय सारिणी मैंने बराबर देखी है। वे कहते हैं कि कर्म जड़ है और वह स्वतः फलदायी होता है। यहाँ पर हमारा और जैन धर्म का विरोध है। पानी ग्रहण करते समय आप लोग सूर्य की साक्षी पर शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तब से सारे कुटुंब की जवाबदारी आपके हाथ पर आ जाती है। आप वस्त्रों से नहीं, पर शुभ कार्यों से शोभा पाएंगे। गधे को सिंह की खाल पहना दो तो वह जब तक न बोले तब तक ही पोल चलती है। नीति के बाहर कभी न जाओ। अनीतिवान पुरुष चौक्कस दुखी होते हैं। देवी वाहन आडटे पहन सिंह की खोल, बानी बर्तन ने बना कही ढोल में बोल। ब्राह्मण ओस का पानी नहीं पीते हैं। एक बार 9 ब्राह्मण सफर कर रहे थे। बहुत प्यास लगी थी। 8 ब्राह्मण ने ओस का पानी पी लिया। एक ने प्यास सहन कर ली, परंतु धर्म नहीं छोड़ा। गांव में जाकर 8 ब्राह्मण ने कहा कि इसने ओस का पानी पिया है। सभी ने मान लिया और ब्राह्मण को भ्रष्ट समझ लिया। फिर भी ब्राह्मण ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जो निभ गया वह तर जाएगा, परंतु निभना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से भले ही अपने स्वार्थ को लेकर मैं आपकी कदर न करूं या आपको न मानूं, पर हृदय जरूर आपकी नीति की सराहना करेगा। दुश्मन भी इसको मानेगा। राज्य व्यवस्था शौर्य को लेकर होती है। कोई कुछ भी करने वाला नहीं है। कुर्सी तुम क्यों चाहते हो? सेवा क्या बाहर से नहीं हो सकती है? ये प्रपंच है। गरीबों की इसमें कहानी निकल जाती है और अमीरों की दुर्दशा होती है। हमारे में संपूर्ण त्याग होना चाहिए, तो ही राज्य व्यवस्था सुधर सकती है। बंगाल में फिर से साम्यवादियों का हल्ला गुल्ला होने लगा है। भारत को बचाने के लिए रूस का चीन के साथ में युद्ध अनिवार्य लगता है। रूस लड़ेगा तो हमारे लिए नहीं, परंतु खुद की रक्षा को लड़ेगा, क्योंकि चीन को यदि भारत मिल गया तो न रूस रह जाता है, न ही अमेरिका रह सकता है। फिर भले ही वे एक सिद्धांती हो। एक ही माता के उदर में रहने वाले 2 भाई आपस में क्यों लड़ते हैं? मुख्य हेतु है सत्ता और सुख पाना। जब सत्वगुण प्रधान धन होता है, तब दान की भावना होती है। रजोगुण प्रधान धन सुख और बैर की इच्छा पैदा करता है, और तमोगुण प्रधान धन नाश की भावना पैदा करता है। अराजकता हमेशा बंगाल से उठी है। सन 1857 में भी वहीं से शुरुआत हुई थी। एक भक्त ने प्रश्न किया, बोस जिंदा है या नहीं बाबा? श्री गुरुदेव ने जवाब में कहा, बोस जिंदा है, यह गलत बात है। वे होते तो भारत की ऐसी नाजुक और कमजोर हालत में प्रकट न हो जाए, ऐसा मैं मान नहीं सकता। और अगर जिंदा है भी और हमारे लिए नहीं आते हैं, तो भी वे निरर्थक ही है। अब तो दूसरा बोझ तैयार करो। भारत में अच्छे से अच्छे राजनीतिक न मौजूद है। राष्ट्र के साथ में सब वफादार रहो। इतने ज्यादा कर से भारत को बुद्धि विकास का गैर लाभ हो जाएगा। व्यापारी लोग निराश हो जाएंगे। सुनो, सूर्य पानी का जब शोषण करता है तब कोई उसे देख सकता है, और बरसता है तब हर कोई वर्षा को देखकर प्रफुल्ल हो जाता है। हमारे यहाँ उल्टा कारोबार है।
शोषण को, टैक्स को हर कोई देख सकता है, परंतु बरसात को, विकास को कोई नहीं देख सकता, किसी को भी नहीं दिखती। भारत आज 20 वर्ष से स्वतंत्र हुआ है। जर्मनी और जापान ने कितनी प्रगति की है सोचो तो। और यहाँ पर तुम कुछ भी करो, कोई कुछ समझता ही नहीं है। जापान में एक लड़की जितना काम करती है उतना यहाँ 3 मजदूर मिलकर भी नहीं कर सकते। सब प्रमादी हो गए हैं। मुफ्त का मिल जाए ऐसी ही भावना रखते हैं। स्नेह में कमी कब पड़ती है उसको सब समझे। स्नेह तो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, यही मैं चाहता हूँ। सदैव मैं यही कहूंगा कि जब तक भारत मजबूत न हो जाए तब तक प्रमाद का त्याग कर दो, नीति से काम लो। प्रत्येक को यह भास होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए है। जिनसे तुमने कमाया है उन गरीबों को अपनी कमाई का 20वां हिस्सा तो दो। कहीं ऐसा न हो कि यह 20वें हिस्से की व्यवस्था में भी रिश्वत चलने लगे। हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि हम खाते हैं उसमें से एक कौर हम भी गरीबों को दे। प्रभु महाशिक्षा जरूर देते हैं, पर दुख देने की दृष्टि से नहीं। गुनाह की शिक्षा तो मिलना चाहिए ना। हमारे में सच्ची नीति हो, सद्भावना हो और अनाज न मिले ऐसा मैं मानता नहीं। विक्रम संवत 1956 में वर्षा नहीं हुई और 57 में दुष्काल पड़ा। अति विकट दुष्काल था वह, આપણે જેને 56 दुष्काल कहिए थे। उस समय अनाज मिलता था पर पैसे नहीं थे, और अभी द्रव्य है, पैसा है, पर अनाज नहीं है। मनुष्य के हृदय का परिवर्तन करने के लिए नीति साफ होना चाहिए। बंगाल के दुष्काल के समय बर्दवान के राजा ने ही खूब द्रव्य दिया था। मेरा क्षेत्र बारिसाल जिले का चेतुआ गांव था। बारिसाल भर में उनके द्रव्य से अनाज अनाज हो गया था। आ समझवा जेवी વાત છે। વિક્રમ સંવત 1956 ની શ્રી ગુરુદેવે વાત કરી છે। ત્યારે શ્રી ગુરુદેવે સેવા કરેલી। કેટલા વર્ષ થયા ગણતરી માંડો। मौत का किसी को भी भरोसा है। कोई कह सकता है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। नित्यम सन्निहितो मृत्यु। एक बार मैं सदाव्रत में मिले दालिया खा रहा था। दांत उसे चबा रहे थे। मैंने सोचा कि मृत्यु के मुख में तो हम पहुंच चुके हैं और दालिया ये रात और दिन है। जीभ यानी काल उनको धीरे धीरे दांत के नीचे मृत्यु के समीप धकेलती है। हमेशा यही विचार रखें। अब केवल 2 महीने रह गए। 2 महीने बाद मक्खी, कोदरा, सामा सब चौक्कस आ जाएगा। धर्मादा का कभी नहीं खाना। जीवन में उबरने को हमारे लिए एक धर्मादा ही स्थान है। चोपड़ा में धर्मादा का खाता कभी न डालो, और डालो तो 12 महीने में हिसाब कर डालो, वरना उसका ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि हम फिर नहीं दे सकेंगे। हमारा कुटुंब अगवड़ में बैठा हो और हम धर्मादा करें, ऐसा मैं नहीं चाहता। मान बढ़ाई को धर्मादा मत करो, धर्मादा की परिधि मत बांधो। देश काल अनुकूल जहां भी उचित लगे वहां धर्मादा करो। जहां इच्छा हो, मन हो, वहीं समझ पूर्वक दान करो। पहले अपना पोषण करो, बाद में धर्मादा करो। वेलोर में एक बहुत बड़ा अस्पताल चलता है। वहां पर ईसाइयों की तरफ से एक हिंदू डॉक्टर गया। उसे जवाब मिला कि हमारे यहाँ तो ईसाई को ही हम लेते हैं। मुझे विचार आया कि वे ईसाई को, फिर भले ही वह अपरिचित हो, उसे मदद करने को तैयार है, और हम अपने कुटुंब तक को मदद करने को तैयार नहीं है। 2 भाई के बच्चों में एक दिवाली पर मिठाई खाता है और एक टुकुर टुकुर देखता रहता है। अलग होने का ये परिणाम है। प्रेम महत्व का है, पैसा नहीं।
ईसाई भले विधर्मी है पर वे उदात्त है। प्रेम जीवन को सरस बनाता है। जिसके जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है वह आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाता है। प्रेम का रस निकल जाने पर जीवन नीरस हो जाता है। प्रेम अक्षुण और वासना से बहुत परे वस्तु है। प्रेम में एकत्व है और वासना में स्वार्थ। वासना की तृप्ति होती है, स्नेह की नहीं। स्नेह तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। भाई भाई, माँ पुत्र, पिता पुत्री सभी में प्रेम होता है। क्यों दंपति में रार, मन पृथक और विचार। मन अने विचार, विचार अने मन બંને अलग अलग દિશામાં જતા હોય, अलग अलग રીતે બંને વિચારતા હોય, એ દંપતીમાં હંમેશા નાની મોટી વાતમાં ઝઘડા થયા કરે છે। શ્રી સદગુરુ દેવ की जय। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।